Hi students, it's the second class of synthetic fibers and plastic. Okay. In previous class we had discussed about basic about synthetic fibers and plastics. We had discussed about fibers, types of fibers, synthetic fibers, polymers and their types, petrochemicals, etc. Okay. In this class we will discuss types of synthetic fibers in detail. Okay. So, as we know, there are four types of synthetic fibers: rayon, nylon, polyester, and acrylic. Okay. Apart of this, we will also discuss about the characteristics of synthetic fibers and disadvantages of synthetic fiber. Okay. So let's start all types of synthetic fibers one by one. Okay. The first synthetic fiber is rayon. Okay. So the rayon is of synthetic fibers which is prepared by the chemical treatment or chemical processes of wood pulp. Okay? Wood pulp is a natural polymer. Okay? Wood pulp is a natural polymer. Its monomer is glucose. Okay? So rayon is also known as artificial silk because it has all properties of natural silk. Okay, it shines like natural silk, it is stronger than natural silk, and it is light in weight. Okay, so in the properties of rayons we can write it shines like natural silk. It is chemically identical to cotton because it absorbs water. Okay, the fabrics, the clothes made up of rayon fibers is comfortable to wear. Okay, so and what is the use of rayon? Rayon is used as a textile in many garments, and it is used to make bedsheet, bandages in many medical sectors. The rayon is used to make bandages, okay, and blanket, etc. Okay, so we can't say rayon a complete synthetic fibers because rayon is made by natural substances, that is wood pulp. Wood pulp is it contains cellulose, okay, and cellulose, the monomer of cellulose is glucose. Okay, so I hope rayon आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. We'll discuss now next types of synthetic fibers, that is nylon. Okay. Nylon is a complete synthetic fiber. As rayon was not complete synthetic fiber because it was made by the natural substances like wood pulp. But nylon is a complete synthetic fiber. It is complete made up of by chemical substances. Okay. So a complete synthetic fibers prepared by the polymerizations of chemical substances. Okay, that is petrochemicals. Okay, so we can write about nylon. It is a complete synthetic fibers in which no any natural substances included. Okay, and it is prepared by the polymerizations of chemical substances, that is petrochemicals. Okay. Now, what is the properties of nylon? The properties of nylon is it is elastic, मतलब बहुत लचीला होता है ये. Okay, lustrous, बहुत ही चमकीला होता है, मजबूत होता है, stronger than natural fibers and light in weight. Weight इसका बहुत ही light, बहुत ही हल्की होती है ये. ठीक है? तो properties क्या होगा? It is elastic, lustrous, strong and light. Okay. Next है it does not absorb water. ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता. ठीक है,
वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसमें इनसफिशिएंट पोर्स होते हैं, ओके, इसलिए ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए दिस फाइबर्स इज इजी टू वॉश, ठीक है। ये वाटर को चूंकि एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए इसको वाटर से इसको वॉश करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिंकल रेसिस्टेंस। इस नायलॉन फाइबर में किसी भी तरह का सिकन नहीं होता, ठीक है। इसको आप किसी भी तरह फोल्ड कर दो, फोल्ड करके फिर से आप खोल दो तो इसमें कोई भी सिकुड़न या सिकन नहीं आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग। ये बहुत ही लंबा समय तक चलने वाला है, लॉन्ग ड्यूरेबल है ये। नेक्स्ट है डज नॉट अटैक्स बाय फंगस। इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, इसे फंगस अटैक नहीं करता है इसको, ठीक है, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, ठीक है। So these all are the properties of nylon. Okay. Uses. अब इसका यूज कहाँ का होगा? तो सबसे पहले रॉप्स, रस्सी बनाने में। इस या रॉप्स मतलब कि बहुत सारे ऐसे रस्सी होती है जो कि बहुत ही हल्की और स्ट्रांग होती है, ठीक है। नायलॉन की रस्सी से हम माउंटेन्स को क्लाइंब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट इज टेंट। टेंट कहीं भी बनाने तंबू को कहीं पे लगता है, दैट टेंट इज आल्सो यूज्ड नायलॉन फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट है ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश। टूथब्रश का आप वो ब्रश की जो ब्रिसल्स है होती है, ठीक है, वो ब्रशेस जो है नायलॉन की बनी होती है, ठीक है। या टूथब्रश की, या आप बहुत सारे ब्रश यूज करते हैं, बहुत सारे टॉयलेट क्लीनर्स क्लीन करने के लिए ब्रश यूज करते हैं, या एक्सेट्रा पेंटिंग करने के लिए जो ब्रश यूज करता है, तो उन सब पे जो ब्रश का जो हेयर होता है ना, ब्रिसल ऑफ द ब्रश, वो सब ब्रश क्या होता है? नायलॉन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार सीट बेल्ट। कार पे आप बैठते हो, सीट बेल्ट जो लगाते हो वो भी नायलॉन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्टेन, पर्दे बनाने में। पर्दे बहुत जगह बहुत ही तरह के पर्दे बनाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर पर्दे हम लोग जो मार्केट में अवेलेबल जो हमारे होते हैं, दैट इज मेड ऑफ नायलॉन, ओके। तो दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ नायलॉन, ठीक है। अगर इसमें नायलॉन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। Polyester is a third type of synthetic fibers. It is made up of two words, that is poly and ester, ठीक है। Poly, P-O-L-Y, poly means many, as we discussed in previous class. And ester is a chemical substances which give fruits their smell, ठीक है। ये fruits को smell देता है, ठीक है। तो पॉलिस्टर किस चीज से बना हुआ है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, दैट इज एस्टर, ठीक है। एस्टर के रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीट होने के दरमियान ये पॉलिस्टर्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो एस्टर क्या है? एस्टर इज ए केमिकल सब्सटेंसेस। तो क्या है इसका, हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉलिस्टर में? पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर व्हिच इज मेड prepared by the repeating chemical substances, that is ester, okay. Yeah, it is prepared by the polymerizations of ester, okay, where ester is a chemical substances, okay. So it is made by two words, that is poly and ester. Poly means many and ester means chemical substance, okay, or unit. So ester अगर आपसे पूछा जाए तो ester क्या लिखोगे? It is a chemical substance which gives fruits their smell, okay, fruity smells उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज। तो पॉलिस्टर का क्या प्रॉपर्टी होगा? तो पॉलिस्टर का पहला प्रॉपर्टी इट इज स्ट्रांग, ठीक है, बहुत ही मजबूत फाइबर्स है, ठीक है। डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, इसमें बहुत ही सफिशिएंट पोर्स होते हैं, इसलिए इस कंप्लीट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबा समय तक चलने वाला होता है, ठीक है। रिंकल रेसिस्टेंट, ठीक है, इसमें रिंकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें रिंकल्स नहीं होते, श्रिंकेज भी नहीं होता, श्रिंकेज भी इसमें अटैक नहीं होता, यानी कि श्रिंकेज जब कपड़े को अगर आप धो लेते हो, ठीक है, धोने के बाद जो कपड़े को हम क्या करते हैं स्ट्रेट करने के लिए उसमें उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। पॉलिस्टर के कपड़े में ऐसा कुछ
सीन नहीं होता क्योंकि उसमें श्रिंकेज नहीं होते, उसमें सिकुड़न नहीं होता, उसमें सिकन नहीं होता, ठीक है। तो आप पॉलिस्टर के कपड़ों को कितनी भी फोल्ड कर दो, उसके बाद फिर आप खोलोगे तो उसमें कोई भी सिकुड़न नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिस्टर्स को हम लोग बहुत ही जगह यूज़ करते हैं, गारमेंट्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। जो मेनली हम लोग बहुत सारे ऐसे यूनिफॉर्म, बहुत सारे ऐसे ड्रेस पहनते हैं जो कि पॉलिस्टर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉलिस्टर के ड्रेस में सिकुड़न नहीं होता, सिकन नहीं होता कहीं भी। ये बहुत ही प्रेस किया हुआ लगता है हमेशा, इसलिए हम इसको बहुत जगह यूज़ करते हैं, बहुत जगह पहनते हैं इस तरह के गारमेंट्स में, इस तरह के कपड़े को, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कर्टन बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं, ठीक है। और फिशिंग नेट्स यानी मछली पकड़ने का भी नेट इससे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप मार्केट में बहुत सारे पॉलिस्टर्स आपको अवेलेबल हैं, किस नाम से? दैट इज पॉलीकॉट और टेरिकॉट, ठीक है। आप अगर मार्केट में जाओगे पॉलिस्टर का कुछ गारमेंट्स, कुछ कपड़े खरीदने के लिए, तो आप कौन से नाम से लोगे? दैट इज पॉलीकॉट प्लस टेरिकॉट, यानी कि पॉलिस्टर प्लस कॉटन को मिक्स करके ये गारमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह का गारमेंट्स जो है ले सकते हो। दिस पॉलीकॉट और टेरिकॉट, टेरिकॉट इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिस्टर, ओके, वेरी पॉपुलर पॉलिस्टर। नेक्स्ट है आपका PET, ठीक है, दैट इज पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, ओके, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, इट स्टैंड्स फॉर पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। मतलब क्या है? ये एक केमिकल्स, ये केमिकल्स नेम है, ठीक है। पेट it is a type of polysters, yeah, it is a resin of polyester which is used to manufacture various types of container, okay। ये क्या होता है कि बहुत सारे कंटेनर बनाने में यूज होता है, ठीक है। प्लास्टिक के कंटेनर से होते हैं ना, ठीक है, जैसे बॉटल्स, जार, अटेंसिल्स कंटेनर, बहुत सारे ऐसे होते हैं। बॉटल्स मेनली जो भी वाटर बोतल जो होते हैं, पानी जिसमें हम लोग पीते हैं, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ PET polyester, okay। PET stand for polyethylene terephthalate, okay। So next one is acrylic. What is acrylic? Acrylic is a fourth types of synthetic fiber, okay, fourth type of synthetic fibers. It is also made up of by repeating unit of chemical substances, that is petrochemicals, okay। तो ये क्या होता है? acrylic is substitutes of wool, ठीक है, ये wool का substitute है, ठीक है। मार्केट में आप लोग लाइट वेट का ब्लैंकेट देखते होंगे, स्वेटर देखते होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑल स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स या ऑल जितने भी गर्म कपड़े होते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल आर मेड अप ऑफ नेचुरल वूल, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे नेचुरल वूल के बने होते हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारे आजकल मार्केट में बहुत ही सारे ऐसे वार्म क्लॉथ्स आपको मिलेंगे जो कि एक्रेलिक के बने होते हैं, ठीक है। तो इसका अब इसमें आप लोग क्या लिखोगे? एक्रेलिक इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स व्हिच इज prepared by the repeating unit of chemical substances, okay। It is a substitute of wool, ठीक है, ये वूल का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट इज लाइट इन वेट, ठीक है, रेसिस्ट श्रिंकेज, इसमें भी श्रिंकेज और रिंकल्स नहीं होते, ठीक है, यानी कि इसमें भी सिकुड़न और सिकन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट कीप वार्म्स, ठीक है, ये हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फील लाइक वूल, इसमें ऊन की जो नेचुरल वूल है ना, ऊन की फीलिंग आती है इसमें, ओके। नेक्स्ट है यूजेस, अब जैसे कि इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, ठीक है, तो वी कैन मैन्युफैक्चर, वी कैन मेड एवरीथिंग, एवरी मटेरियल्स एज वी मेड्स बाय वूल, ठीक है। जैसा कि हम लोग वूल से सब कुछ बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं और ग्लव्स बनाते हैं, ठीक है, वैसा ही सब कुछ हम लोग एक्रेलिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू weave, to knitting sweater, to weave shawls, gloves, etc. Okay? So I hope कि आपको चारों टाइप्स ये समझ में आ गया होगा, ओके।
अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आएगा इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा रेयर, नायलॉन्स, पॉलिस्टर्स एंड एक्रेलिक में द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर सेम, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर में क्या आ जाएगा, सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है इन द कंपैरिजन ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर से अगर कंपेयर करें तो सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ड्यूरेबल्स यानी लंबा समय चलने वाला होता है। सिंथेटिक नेचुरल फाइबर्स लंबे समय तक नहीं चलता, बट सिंथेटिक फाइबर्स जो है लंबा समय तक चलने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक फाइबर इज रिंकल रेसिस्टेंट एंड डू नॉट श्रिंक। ठीक है, रिंकल रेसिस्टेंट होता है मतलब इस सिंथेटिक फाइबर में सिकुड़न नहीं होता। ठीक है, एंड डज नॉट श्रिंक, इसमें जो है सिकुड़न भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइट वेट, बहुत ही हल्का वेट होता है सिंथेटिक फाइबर का। ओके, नेक्स्ट है लेस अब्सॉर्ब वाटर, ड्राई अप इजीली। ठीक है, एज वी नो देयर आर सफिशिएंट पोर्स इन द सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सो इट डज नॉट अब्सॉर्ब वाटर कंप्लीटली। ओके, ये वाटर को कंप्लीट यानी कि बहुत ही फ्यू वाटर्स को ये अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या होता है, लेस एब्जॉर्ब वाटर्स ड्राई अप इजीली, ये वाटर को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है और जल्दी सूख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, यानी कि बहुत ही सस्ता होता है इन द कंपेयर ऑफ नेचुरल फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर से ये बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, और ये इजीली अवेलेबल भी होता है मार्केट में। ठीक है, और नेचुरल फाइबर्स इजीली इसके कंपेयर में कम इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहला क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, सेकंड क्या है, इट इज रिंकल रेसिस्टेंट एंड डज नॉट श्रिंक। थर्ड क्या है, इट इज लाइट इन वेट इन कंपेयर ऑफ नेचुरल फाइबर। फोर्थ क्या है, लेस एब्जॉर्ब वाटर्स एंड ड्राई अप इजीली। नेक्स्ट क्या है, लेस एक्सपेंसिव। ओके, नाउ अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हमने देखा है सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो पेट्रोलियम्स के रिफाइनिंग के वक्त जो भी केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन होता है उस सब्सटेंसेस से हम लोग उस सब्सटेंसेस को पॉलीमराइजेशन करके हम लोग क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो भी बने होते हैं वो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। ओके, तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, मेल्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, मेल्ट इजीली ऑन हीटिंग। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि जब इसे हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, यानी कि जब ये ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, पिघलने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अगर आप कपड़े पे इस सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनकर अगर आप किचन में काम कर रहे हो या किसी लैबोरेटरी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ये क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है फायर्स को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और क्या होता है इससे डिजास्टर्स बहुत ही भयानक हादसा हो सकता है। ओके, एंड ये तो मेल्ट तो होगा ही, यानी जो कपड़े हम लोग पहनेंगे वो तो आग से जलेगा ही। ठीक है, और ये क्या होगा, स्टिक्स हो जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, यानी बॉडी में चिपक जाएगा ये। ठीक है, बिकॉज दिस ऑल आर केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, ये बॉडी में चिपक जाएगा और ये बहुत ही भयानक हादसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर समर। ओके, तो पहला क्या है, इट मेल्ट्स इजीली ऑन हीटिंग। ठीक है, सो वी डू नॉट प्रेफर्स टू वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स
while working in kitchen or laboratory. Okay, this is the first disadvantages. Second disadvantages is not suitable for summer. This types of clothes is not suitable for summer because, as we know, there are very few pores in this type of clothes. Okay, so it does not absorb water or sweat. ठीक है, तो गर्मी में अगर हम इसे पहनते हैं तो क्या होगा, हमारा पसीना जो है वो बाहर, ये कपड़ा तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं तो बाहर आएगा ही नहीं. ठीक है, जब वो बाहर नहीं आएगा तो हमें क्या होगा, और भी गर्मी फील होगी. ठीक है, सो इसका सेकंड डिसएडवांटेजेस है नॉट सुटेबल फॉर समर्स. ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल फॉर समर बिकॉज it has very sufficient pores and the sweat does not absorb our sweat in summer. Okay, and we will feel uncomfortable. Okay, तो फर्स्ट एडवांटेज में लिखोगे आप मेल्ट ऑन हीटिंग, सेकेंड एडवांटेज में लिखोगे इट इज नॉट सुटेबल फॉर समर. ओके, सो दिस ऑल टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे. In next class, we will discuss about plastics and their types. Okay, plastics and their types. So, this is all for today. Let's have a look. Thank you.